हे गाइस। सो आज हम लोग चिकमगलूर जाएंगे बैंगलोर वाइट फील्ड से। अभी सुबह के 6:30 के बज रहे हैं। सो गाड़ी 100% चार्ज है। हम लोग बीच में स्टॉप लेंगे जियोन चार्जर यदियूर पे, और फिर उसके बाद डायरेक्ट चिकमगलूर IHCL होटल में फास्ट चार्ज करेंगे। यहाँ पे मैंने रिजॉर्ट बुक किया हुआ है। हम लोग जल्दी तो निकले थे 6:30 बजे, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि काफ़ी ट्रैफिक है, स्पेशली ट्रक्स के कारण। एंड जनरली ट्रक्स को लेफ्ट लेन में रहना चाहिए, बट यहाँ पे सारे लेन्स ऑक्यूपाई करके चल रहे हैं। सो आई थिंक बैंगलोर से निकलने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। होपफुली हाईवे पे सिचुएशन बेटर होगा। तो आप बने रहिए और आगे का वीडियो देखते रहिए। तो जैसा सोचा था, यदियूर तक का रास्ता काफ़ी बढ़िया है। ट्रैफिक बहुत कम था सुबह सुबह, एंड काफ़ी मज़ा आया ड्राइव करने में। 100 के ऊपर भी मैंने स्पीड रखा। और फिर हम लोग ने यदियूर जियोन चार्जर पे स्टॉपेज लिया, वहाँ पे चाय नाश्ता किया। सो अभी आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा कि We have जियोन this चार्जर Xeon का charger लोकेशन। at Pathshala Yadiur. So I will be putting my car to charge here. सो चार्जिंग शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लगा, बिकॉज मुझे जियोन पे टॉप अप करना पड़ा था, बट फाइनली चार्जिंग शुरू हो गया। Hello guys, so we have reached the Gateway Hotel Chikmagalur. So we have not booked it here, but since there is a charger, so we are parking it here and we will be charging it. So there is another Tigor EV which is using the fast charger. So for the timing I will put it on the slow charger. So yep, we have reached this with just 15% battery left. So we, as you know, in the Yadiur Xeon charger we charge it to 96%. So it's good to, we will just top it up and then we will go to our hotel. सो हम लोग ऑलमोस्ट होटल तक पहुंचने वाले हैं, बट अभी 2-3 किलोमीटर बचा है। एंड लास्ट 2-3 किलोमीटर्स बहुत ही ऑफ रोडिंग टाइप एक्सपीरियंस है, बिकॉज रोड कंडीशन आप देख रहे हैं काफ़ी ख़राब है। दिस इज़ द ओनली वे टू रीच द रिजॉर्ट। और ये हिल के बेस पर है। आई मीन इट्स अप द हिल, बट वहाँ से पीक भी दिखता है, मुलानीगिरी पीक दिखता है। सो लोकेशन अच्छा है, बट पहुँचने का रास्ता बहुत ही ख़राब है एंड इट्स वेरी नैरो। सो अगर कोई गाड़ी उधर दूसरी साइड से आ गई तो आपको साइड होना भी मुश्किल हो जाएगा। सो ये एक चीज़ है। अगर आप फुट हिल्स होम स्टे में स्टे करना चाहते हैं तो ये एक चीज़ ध्यान से रखिए, बिकॉज मेरे पास नेक्सॉन ईवी है एंड ऑफ कोर्स ग्राउंड क्लियरेंस बहुत हाई है और ये ऑफ रोडिंग कर सकती है। सो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ ज़्यादा। बट आपके पास अगर सेडान है या कोई गाड़ी इसमें ऑफ रोडिंग मुश्किल है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अभी हम पहुंचने वाले हैं, आपको मैं पहुंच कर दिखाता हूँ रिजॉर्ट कैसा है।
Hey guys, so we have reached the Foothills homestay. So let me just show you around the property. It's quite a good property and it's actually located at the base of the hill or the mountain. So quite nice. It's a very secluded spot and we had to do a lot of off-roading to reach here, especially the last 2-3 kilometers. But yeah, so here we are, and thankfully I had charged my EV to 70% at the Taj Chikmagalur. So I reached here with 60% battery left. So overnight I will put it in charge also, and this evening we are just staying at the hotel, and then there will be a bonfire. We will just enjoy. Yeah. So see you tomorrow. Tomorrow we'll visit the peak, Mulanagiri peak, and I will. Please continue watching this video to know more. Thank you. Hello guys, so this is our second day in that Foothills homestay in Chikmagalur. So we are today going to Mulyanagiri Peak, and then we will go to nearby places like Jhari Falls, etc. So we did have a hiccup yesterday that my plan was to slow charge the car to 100% at the hotel or at the homestay, but when I put it in charge, then the load was fluctuating, etc. So of course I had to take it out. Thankfully I had like more than around 80% charge, which I did at the IHCL hotel. So I still have 56% and I can go to 101 kilometer. So our plan is to go to nearby places, and then I will go to IHCL hotel where we will have lunch and charge my car. So see you around. Keep looking at the videos. So अभी हम लोग मुल्यानागिरी पीक की तरफ जा रहे हैं. काफ़ी अपहिल क्लाइंब है. सो स्टार्ट पे मैंने दिखाया था आपको 51% बैटरी थी. सो आई एक्सपेक्ट कि 35% टू 40% के बीच में मैं बैटरी में पहुंच जाऊंगा, बिकॉज आई थिंक 12 टू 14 किलोमीटर्स ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है. इट्स जस्ट दैट अपहिल काफ़ी है एंड ट्रैफिक बहुत होता है यहाँ पे. सो उसका भी आपको ख्याल रखना है. एंड रोड्स आर ऑफ कोर्स वेरी नैरो. तो आपको आपको जाते टाइम तो रुक रुक के जाना होगा बिकॉज ट्रैफिक बहुत है. देन लौटते टाइम पीक पे एक्चुअली यू टर्न का कोई जगह नहीं है सच. सो आपको वही नैरो रोड में ही किसी तरह आगे पीछे करके आपको यू टर्न लेना पड़ेगा. Hey guys, so we are here near Mulyanagiri Peak. There's still like some way to go, but this is I think a stop here. There is a temple, so we have stopped here for a bit. But the view from here is quite nice. So it's a short trek. People are trekking up the hill, and there are some eatery joints near the temple also. So it's a good pit stop. So yep, I will show you when we reach the peak, so stay tuned. So guys, that's the Chikmagalur peak. You can see lots of people trekking up the hill. Most probably we will not go there because my wife does not like to climb that much stairs. But yeah, we are at a nearby sort of a hilltop. So that's my wife, and you can see the city down below. It was very cloudy when we came here, but now the clouds are dispersed and you can clearly see the peak. So yeah, we'll be spending some time here, and then we'll go to the IHCL hotel to charge our EV. See you, stick around for the next part of the video.
Hey guys, so we are back at the resort. So it was a hectic day. In the morning after breakfast, we first went to the peak, Mulyanagiri Peak, and there was huge traffic jam. You will see the videos later on. But there was huge traffic jam. I had to take a U-turn on that narrow hill road. So it was an experience, but as usual, next one we ने काफ़ी अच्छा काम किया. सो इनफैक्ट द अपहिल एज यू नो येस्टरडे थोड़ा मेरे साथ कांड हुआ था. होटल वालों ने रिजॉर्ट वालों ने बोला था कि चार्जिंग कर सकते हैं, और चार्जिंग लगाया भी, चार्जिंग शुरू हुआ, बट देन उनका लोड फ्लक्चुएट करने लगा. सो आई हैड टू स्विच इट ऑफ. तो थैंकफुली मैंने यहाँ पे ICL ताज होटल में आई हैड चार्ज इट टू अराउंड 80% येस्टरडे इवनिंग, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 52-53% के अराउंड बचा हुआ था, और तब मैंने ओवरनाइट चार्जिंग पे लगाया जो नहीं हो पाया. तो 52-53% मेरे पास फिर भी था. सो आई कुड हैव ड्रिवन लाइक 100 मोर देन 100 किलोमीटर. तो मैं उसी में मुल्यानागिरी पीक गया, एंड वो वहाँ तक पहुँचते मैं 40% बैटरी बचा, बट देन स्लोप था तो आई गेंड 3-4% मोर. सो उसमें कोई इशू नहीं था. एंड देन लंच के लिए फिर हम लोग ने ICL ताज होटल गए, और वहाँ पे फिर मैंने 100% चार्ज किया. उसके बाद हम लोगों ने हीरो कुलाले लेक गए, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और नाउ बैक टू रिजॉर्ट. तो अभी मेरी गाड़ी में बैटरी आई थिंक अराउंड 88% है, एंड इट्स शोइंग मोर देन 240 किलोमीटर. एंड टुमारो वी विल बी गोइंग बैक टू बैंगलोर. तो थोड़ा तो डाउनहिल होगा ही यहाँ से, क्योंकि हम लोग थोड़ा हाइट पे हैं अभी. सो ईज़िली मतलब एक बार तो चार्ज करना पड़ेगा रास्ते में. सो हम लोग सोच रहे हैं कि हसन के जियोन चार्जिंग में चार्ज करें, होटल स्काई पार्क में आई थिंक नाम है, वहाँ पे इट्स अराउंड 85 किलोमीटर फ्रॉम हियर. तो वहाँ पे फुल चार्ज करके देन डायरेक्टली टू होम. वहाँ से घर तक मेरा 185 किलोमीटर है, जो हो जाना चाहिए 100% बैटरी पे. और अगर नहीं हुआ तो बीच में ऑफकोर्स यदियूर में है चार्जर. सो अगर कुछ लगा कि नहीं हो पाएगा तो यदियूर में विल मेक ए पिट स्टॉप टू टॉप इट अप. सो ये था, काफ़ी ऑफ रोडिंग हुआ है. मैं आपको फोटोज़ दिखाऊंगा नेक्स्ट नीवी का, मतलब वाटर स्प्लैशेस, डस्ट, सब कुछ है. बट या इट हैज़ हैंडल्ड इट वेरी वेल. और एक और बात, मुल्यानागिरी पीक में जब मैं था तो आई सॉ अनदर नेक्स्ट ऑन ईवी. आई डोंट नो हु दैट पर्सन वाज, बट इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन प्लीज डू कमेंट. एंड ऑल्सो लाइक आई हर्ड पीपल टॉकिंग कि electric car charging, okay, does it have so much power that it can pull it up to the peak? So थोड़ा बहुत मिसकंसेप्शन है भी लोगों में. लगता है कि EV है तो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, ज़्यादा हॉर्स पावर नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स हम लोग को पता है कि नेक्सॉन EV में इनफैक्ट नॉर्मल गाड़ी से ज़्यादा हॉर्स पावर है. सो इट वॉज गुड टू हियर पीपल टॉकिंग अबाउट इट. बेसिकली 3-4 लोगों ने ऐसा बोला, 1-2 लोगों ने मुझे पूछा भी कि क्या है. सो अब शाम में यहाँ पे बॉन फायर होता है, आपको फ़ोटोज़ में दिखाऊंगा, और स्नैक्स होता है, देन उसके बाद डिनर, एंड देन टुमारो सुबह उठ के हम लोग वापस बैंगलोर के लिए निकलेंगे. हम लोग ने बहुत ज़्यादा नहीं घूमा. आई मीन मेन मुल्यानागिरी पीक देखना था वो देख लिया, लेक देखना था वो देख लिया, वाटरफॉल्स मतलब रास्ते में पड़ा था एक दो छोटा वाटरफॉल्स, तो वो ने देखा, बट झारी वाटरफॉल्स एंड हेब्बे वाटरफॉल्स नहीं जा पाया, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए इट्स बेसिकली 2 आवर ड्राइव, और मैं नहीं चाहता था उतना रिस्क लेने का, बिकॉज अपहिल होता है. वो जा सकता था लेकिन टाइम भी नहीं था, तो ठीक है, मे बी नेक्स्ट टाइम. सो आज भी जैसा मैंने बताया, मैं लंच के लिए ICL होटल में रुका था, वहाँ मैंने फिर चार्ज किया. तो वहाँ भी लाइक 2-3 EVs थी. मैं पहुँचा तो वहाँ पे एक MG ZSCV पार्क थी, बट चार्ज नहीं करी थी, मे बी शायद चार्ज हो गया होगा. देन जब मैं निकला तो एक और नेक्सॉन EV आई थी चार्ज करने के लिए. सो फास्ट चार्जर एक ही है लेकिन, और एक स्लो चार्जर है. बट कल भी मैंने देखा था एक टिगोरी भी चार्ज हो रही थी वहाँ पे जब मैं पहुँचा था, तो मुझे वेट करना पड़ा था हाफ एन आवर. और आज भी एक और नेक्सॉन EV आई. सो आई थिंक अब एक चार्जिंग से काम नहीं चलेगा. एट एवरी लोकेशन एटलीस्ट 2 तो होना चाहिए, बिकॉज मैंने देखा है कि मतलब अब EVs आर वेरी कॉमन. इनफैक्ट जब मैं यहाँ आ रहा था चिकमगलूर, तो रास्ते में पाकशाला पे जियोन चार्जिंग है, तो वहाँ पे मैं रुका था, तो वहाँ पे BYD की गाड़ी भी थी चार्जिंग के लिए.
लेकिन वहाँ पर उस टाइम पे पावर कट था, उन लोग ने वेट नहीं किया, वो चले गए। मैंने 10 मिनट वेट किया, पावर आ गया, तो मैंने वहाँ पे टॉपअप किया था। सो रश है। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ना चाहिए। अब एक चार्जिंग पॉइंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ईवीज धड़ाधड़ बिक रही हैं, और अब बेसिकली इस साल नेक्स्ट ईयर और ईवीज लॉन्च होने वाली हैं, तो इनफैक्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैचअप करना पड़ेगा। बट स्टिल लाइक यहाँ तक मैं आ गया ईवी पे, एंड हिल्स पे भी गया, सब कुछ गया। आपको ये ज़रूर करना होगा कि आपको प्लान करना होगा कि अगर, जैसे मैंने होटल में पूछा था, होटल में मैंने माना भी था, लेकिन वॉट एवर प्रॉब्लम की वजह से वो चार्ज नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम स्टक हो गए कि 5% ही बैटरी है आपके पास, आप कहीं जा ही नहीं सकते हो, और पावर चार्ज भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इलेक्ट्रिक लोड फ्लक्चुएट हो रहा है घर का, मतलब ट्रिप हो जाएगा बेसिकली। सो आपको प्लान करना होगा कि आप पहुँचो कहीं पे भी, तो अगर रास्ते में फास्ट चार्ज है तो फास्ट चार्ज पे आप जितना चार्ज कर सकते हो कर लो। तो 30-40% भी हो तो आप एटलीस्ट ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पे आपको चार्जर मिल जाए, अगर आपके होटल में चार्जिंग पॉइंट या किसी भी कारण से नहीं है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पास प्लान ए और प्लान बी दोनों होना चाहिए, और मे बी प्लान सी भी कर लो, करने में क्या जा रहा है। बट हाँ, बैकअप होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा अनरिलायबल है अभी। पावर, जैसा मैं बताया, पाकशाला में पावर कट था उस टाइम पे। आई नो पाकशाला के बगल में एक और है, बट अगर मे बी उस एरिया में पावर कट होगा तो दोनों नहीं चलेगा। सो ये आपको देखना होगा कि अगर एक जगह पे पावर कट है तो कितना डिस्टेंस आपको और चलना होगा दूसरा चार्जिंग पॉइंट ढूंढने के लिए। सो ये सब कुछ लाइक थिंग्स फॉर कंसिड्रेशन है, जो हर ईवी ओनर को पता होना चाहिए। सो आप आईसी व्हीकल की तरह आंख बंद करके कहीं भी नहीं जा सकते हो, आपको पूरा मतलब देखना पड़ेगा कि कहाँ पे चार्जिंग है, इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं चार्ज करना पड़ा तो। सो आपको वैसा करना पड़ेगा। और आप मेरा वीडियोस देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं और ट्रैवल व्लॉग्स बनाऊंगा ही। नेक्स्ट वन ईवी का बना रहा हूँ मेरे पास। आई नो ईवी मैक्स आ गई है, एंड अगर वो होती मेरे पास तो ऑफकोर्स चार्जिंग का और कम टेंशन होता। बट ठीक है, दैट इज़ एन एक्सपेंसिव कार, लाइक 2.5 lakhs मोर देना पड़ता। आई एम परफेक्टली हैप्पी विथ माई करंट नेक्सॉन ईवी।